Namaste, myself Samir Kumar, currently working as an assistant professor at HR College Amnor, the constituent unit of Jayaprakash University, Chhapra. I welcome you all to this online lecture course of BSc Physics, Part 1. I am very excited to build this community together. Therefore, I request you to use the comment section to introduce yourself and get to know each other. If you like the teaching, then don't forget to like and share the video. Today we will discuss two important concepts of mechanics and relativity. One is reference frame and another one is inertial and non-inertial reference frame. So what is reference frame, जिसे कि हम निर्देश तंत्र भी कहते हैं, तो यह जानने के लिए कि reference frame क्या है, we have to know or understand the concept of rest and motion. So how we define the position of an object, or how we can say that an object is in motion. To do this, we have to take the axis system or coordinate system. The simplest coordinate system is Cartesian coordinate system. X, Y, Z are the axes. Now X and Y axes are in the plane of the screen and Z is perpendicular to the plane. Now in this coordinate system, we can consider a particle P. To define the position of particle P, we need the value of X, Y and Z. If we can describe the position, velocity and acceleration of particle P in this coordinate system, then we can say that this axis system or coordinate system is a reference frame. In other words, a coordinate system is referred to as a reference frame when we can describe the kinematics of an object within that system. By kinematics, I mean the position, velocity and acceleration as a function of time. Therefore, P का पोजीशन और वेलोसिटी बताने के लिए हमको क्या चाहिए, टाइम एक्सिस भी चाहिए. एक हमको लेंथ स्केल चाहिए और एक हमें टाइम स्केल चाहिए और एक हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए. Now basically there are two types of reference frame. One is inertial reference frame, जिसको कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, और another is non inertial reference frame, जिसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं. तो बात आता है कि inertial और non inertial reference frame क्या है. Inertial reference frame वो reference frame है जिसमें कि न्यूटन्स लॉ होल्ड करते हैं. तो हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रिकॉल करेंगे. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट विथ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी. तो कहने का मतलब है कि यदि कोई आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है या वस्तु है और यदि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से गमन करेगी. वो कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है. इसीलिए यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा. तो इसीलिए हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी कहते हैं और नॉन रोटेटिंग फ्रेम भी कहते हैं. ये सारे कंसेप्ट को आगे हम डिस्कस करेंगे. नॉन रोटेटिंग फ्रेम क्या होता है या एक्सेलरेटिंग फ्रेम क्या होता है. तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है, ये ऐसा फ्रेम है जो कि यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन या से मूव करती है और is being rotated with uniform speed. Now let us consider two frame. One is S frame and another is S prime frame. S frame का
कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई और एस प्राइम का एक्स प्राइम है वाई प्राइम। हम एस फ्रेम में एक पार्टिकल ले रहे हैं पी, इसका पोजीशन वेक्टर है आर, ऑब्जर्वर ओ जो है इस पार्टिकल का डिस्टेंस ये मेजर करेगा। यदि कोई एक ऑब्जर्वर एस प्राइम फ्रेम में है तो ये आर प्राइम मेजर करेगा और ओ प्राइम और ओ का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो ऐसा देखा गया है कि यदि एस प्राइम फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, एक इनर्शियल फ्रेम एस फ्रेम यदि इनर्शियल है तो एस प्राइम फ्रेम भी इनर्शियल हो। इफ that is if s prime moves with a constant velocity, s prime is also inertial। तो इस रिजल्ट को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सवाल है कि इफ आई हैव टू रेफरेंस फ्रेम्स, one moving at a constant velocity relative to other, then prove that the acceleration measured in both the frames will be identical। तो r बराबर क्या होगा इस फिगर से? r बराबर कैपिटल R प्लस आर प्राइम। तो हमारा r हो गया आर प्राइम प्लस ठीक है। नाउ आर प्राइम को हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि हमारा एस प्राइम फ्रेम मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी v से, तो r क्या होगा हमारा? कैपिटल R जो है फंक्शन ऑफ टाइम होगा और r प्राइम भी हमारा फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो r को हम ऐसे लिख सकते हैं r0 प्लस v t। v क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है एस प्राइम फ्रेम का, और r0 क्या है? ओ प्राइम का ओ से डिस्टेंस t इक्वल टू 0 पे। तो यदि हम r प्राइम का डेरिवेटिव्स लेंगे तो क्या होगा? d इक्वल टू प्लस dt। अब इसको हम v प्राइम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? v हो जाएगा स्मॉल v, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से कैपिटल V। यदि हम इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन आएगा, ये हमारा हो गया a प्राइम इक्वल टू a, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 0। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हमने पाया कि यदि s प्राइम कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो s फ्रेम में और s प्राइम फ्रेम दोनों फ्रेम में जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगी। और एक्सेलरेशन से हमें तो
फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो फोर्स यदि फोर्स सेम होगा तो हम बोल सकते हैं कि बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल। तो इसके लिए बस इतना ही, धन्यवाद।